خواتین کی حفاظت کے دعووں میں کتنی سچائی ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے ملکاجگیری کی نئی پولیس کمشنر جی سمتی نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ آدھی رات کے بعد وہ ایک عام خاتون کی طرح سڑک پر، بس اسٹاپ پر اور سنسان موڑ پر تنہا کھڑی رہی اور اس بات کا اندازہ لگایا کہ ایک عام عورت رات کے وقت خود کو کتنا محفوظ محسوس کرتی ہے۔ شہر حیدرآباد میں خواتین کی حفاظت کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن دعوے کتنے سچ ہیں اس کا پتہ لگانے کے لیے ملکاجگیری کی نئی پولیس کمشنر جی سمتی نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ شہر میں خواتین کی حفاظت کا جائزہ لینے کے لیے وہ بغیر کسی پروٹوکول یا سیکیورٹی کے ایک عام خاتون کی طرح آدھی رات کے بعد سڑکوں پر نکل آئی۔ وہ کبھی بس اسٹاپ پر کھڑی رہی تو کبھی سنسان موڑ پر تنہا کھڑی رہی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ایک عام عورت رات کے وقت خود کو کتنا محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اور جب ملکاجگیری کی کمشنر نے یہ قدم اٹھایا تو اس کے نتائج انتہائی افسوسناک رہے۔ چند ہی گھنٹوں کے دوران تقریباً 40 مردوں نے انہیں تنہا پا کر یا تو ان کا پیچھا کیا یا پھر ان کے قریب جانے کی کوشش کی۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان میں سے اکثر افراد نشے کی حالت میں تھے، جنہوں نے کمشنر پر نہ صرف فحش جملے کسے بلکہ نازیبا اشارے بھی کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی ان افراد نے حد پار کی، پہلے سے الرٹ پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ان تمام 40 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان تمام کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں ملکاجگیری کی کمشنر جی سمتی نے خود ان کی کاؤنسلنگ کی اور انہیں سخت وارننگ بھی دی گئی۔ اتنا ہی نہیں، ان کے والدین اور اہل خانہ کو بھی پولیس اسٹیشن بلایا گیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ان کے گھر کے مرد سڑکوں پر خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سی پی سمتی کے اس اقدام کو زبردست طریقے سے سراہا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر ہر افسر اسی طرح سے زمینی حقائق کا جائزہ لے تو جرائم پیشہ افراد کے دلوں میں قانون کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ سی پی سمتی کا یہ قدم نہ صرف منچلے افراد کے لیے ایک انتباہ ہے بلکہ محکمہ پولیس کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ شہر کو محفوظ بنانے کے لیے صرف دفاتر میں بیٹھنا کافی نہیں ہے بلکہ سڑکوں پر اترنا بھی لازمی ہے۔ حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے عازمین حج کا 8واں قافلہ روانہ ہوا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام اب تک 4,500 سے زائد عازمین سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج 2026 کے لیے عازمین کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج دوپہر صدر نشین حج کمیٹی خسرو پاشا افضل بیابانی کی صدارت اور نگرانی میں عازمین کا 8واں قافلہ روانہ ہوا۔ اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ عازمین کی اس روانگی کے موقع پر انہیں رخصت کرنے کے لیے علماء اکرام اور مشائخین بھی موجود رہے، جن میں قاضی عمیر محمد قمر الدین حسین اور قاضی عزیز محمد اصلاح الدین حسین کے علاوہ دیگر بھی شامل ہیں۔ علماء اکرام نے عازمین سے خطاب کرتے ہوئے سفر حج کے آداب بیان کیے اور عازمین سے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعاؤں کی بھی خواہش کی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ 8ویں قافلے کی روانگی کے ساتھ ہی اب تک تلنگانہ سے 4,440 عازمین حج شمشاباد ایئرپورٹ سے فلائی ناز کی خصوصی پروازوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ حج کمیٹی کے مطابق تمام عازمین کی رہائش اور سفری سہولیات کا مکہ مکرمہ میں بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ حج کمیٹی کے صدر نشین سید غلام افضل بیابانی کے مطابق تمام انتظامات شیڈول کے مطابق ہی مکمل کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاضی عمیر محمد قمر الدین حسین، قضات قلعہ محمد نگر و بارہ محل۔ آج الحمدللہ حاجیوں کا 8واں قافلہ یہاں حج ہاؤس سے نکلا ہے، جو کہ بہترین انتظامات کے ساتھ قاضی خسرو پاشا صاحب اور تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے جو انتظامات ہوئے ہیں، بہت ہی بہتر انتظامات کے ساتھ حاجی یہاں سے ایک خوشی کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں، ودا ہو رہے ہیں۔ حیدرآباد سے کئی سارے اسٹیٹس کے دوسرے حاجی بھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ جو تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے اور حج ہاؤس کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے ہیں، بہت ہی بہتر، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ۔ ہماری دعا یہی ہے کہ تمام حاجی صاحبان جو ہمارے تلنگانہ ہو، انڈیا کی طرف سے ہو، تمام ادر ممالک کی طرف سے ہو، ہماری یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کرے، ان کے نمازوں کو قبول کرے، ان کے دعاؤں کو قبول کرے، اور جو حج کو جا رہے ہیں اللہ ان سب کے حج کو قبول کرے۔ اور تمام امت مسلمہ کے لیے ان سے گزارش کی جاتی ہے ہم سب کی طرف سے کہ
BRS کے کارگزار صدر KTR نے کلیشورم پروجیکٹ میں بدعنوانی کے الزامات لگانے والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایسے افراد جو کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے آج ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کلیشورم پروجیکٹ میں 1 لاکھ کروڑ روپے کی بدعنوانی کا دعویٰ سراسر بے بنیاد اور مضحکہ خیز ہے۔ KTR نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ سابقہ BRS حکومت کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں تھے۔ انہوں نے ہائی کورٹ کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے نے عوام کو یہ دکھا دیا ہے کہ کلیشورم کے خلاف جو بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا تھا۔ KTR نے مزید کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے کلیشورم کے نام پر عوام کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن قانون کے سامنے جھوٹ کام نہیں آیا۔ انہوں نے کانگریس کے ساتھ ساتھ BJP پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ان جماعتوں نے پروجیکٹ کی لاگت اور معیار کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا تھا وہ اب ناکام ہو گیا ہے۔ BRS قائد کا کہنا تھا کہ کلیشورم پروجیکٹ کی وجہ سے تلنگانہ کے کسانوں کی زندگیوں میں خوشحالی آئی ہے اور اس پروجیکٹ کو بدنام کرنا دراصل تلنگانہ کے مفادات کے خلاف سازش ہے۔ تلنگانہ کی وزیر برائے پنچایت راج و دیہی ترقی سیتا اکا نے ملگو ضلع کے دورے کے موقع پر کہا کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ گاؤں کونڈائی کی ہمہ جہت ترقی کے لیے پوری طرح سے سنجیدہ ہے۔ تلنگانہ کی وزیر برائے پنچایت راج و دیہی ترقی سیتا اکا نے ملگو ضلع کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ گاؤں کونڈائی کی ہمہ جہت ترقی کے لیے پوری طرح سے سنجیدہ ہے۔ سیتا اکا نے اعلان کیا کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے پہلے مرحلے میں 115 مکانات منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے علاقے میں نقل و حمل کی سہولت کو بہتر بنانے کے لیے 16 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک بڑا پل تعمیر کیے جانے کا انکشاف کرتے ہوئے حکام کو سخت ہدایت جاری کی۔ سیتا اکا نے کہا کہ کونڈائی پل کی تعمیر کا کام ہر حال میں موسم برسات سے پہلے ہی مکمل کیا جانا چاہیے تاکہ مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سیتا اکا نے مقامی عوام سے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اس بار ریکارڈ فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ حکومت سیلاب زدہ علاقوں کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاربان MLA قاسم محی الدین نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے استفادہ کنندگان میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاربان MLA قاسم محی الدین نے نارائن نگر کے سابق کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے ہمراہ شیخ پیٹ منڈل کے 88 استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت چیکس تقسیم کیے گئے چیکس کی مالیت 88,10,280 روپے رہی۔ اس موقع پر شیخ پیٹ منڈل کا ریونیو عملہ، مجلس اتحاد المسلمین کے فدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان دیکھے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارود چارشمار صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کی ہدایت پر حلقہ کاروان میں شیخ پیٹ منڈل کے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے 88 چکوں کو بختار گڑا SS فنکشن کے اندر دیا گیا اور اس پروگرام کے اندر شیخ پیٹ منڈل کے ڈپٹی MRO ان کے تمام سبارڈینیٹ اس پروگرام میں شامل تھے اور ساتھ ہی ساتھ سابقہ نمائندہ کارپوریٹر جناب ہارون فرحان صاحب، جناب نصیر الدین صاحب، مجلس کے صدر معتمدین اور ذمہ داران مجلس اس پروگرام میں شامل تھے اور جو 88 جگہوں کے اندر جمالی کنڈا، قلی قطب شاہ نگر، ندیم کالونی، محمدی لین، اکبر پورہ، وراثت نگر، حکیم پیٹ کنڈا، مہراج کالونی، ان تمام علاقے جات کے 88 چکوں کو دیا گیا۔ انشاءاللہ عنقریب کے اندر آصف نگر منڈل اور گولکنڈا منڈل کے شادی مبارک کلیانہ لکشمی کے کل باقی ہے، انشاءاللہ عنقریب میں دیا جائے گا۔ تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کے کویتا نے تلنگانہ کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فیس ریگولیشن سے متعلق جیو فوری طور پر جاری کرتے ہوئے والدین کو راحت پہنچائے۔ تلنگانہ میں تعلیمی سال کے آغاز سے قبل ہی نجی اسکولوں اور کالجوں کی جانب سے فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کیا جا رہا ہے۔
टीआरएस की सदर के कविता ने इस हसास मसले पर कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने वादे के मुताबिक फीसों पर कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर हुक्मनामा जारी करे। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को इंतखाबी वादा याद दिलाते हुए कहा कि जो हुकूमत खुद को अवामी हुकूमत कहती है उसे अवाम के मसाइल का इल्म होना चाहिए। कि कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत से ये मुतालबा किया जाता है कि वो मई के महीने में ही फीस रेगुलेशन का जीओ जारी करें और निजी तालीमी इदारे जो मनमानी करते हुए फीसों में बेतहाशा इजाफा कर रहे हैं उन इदारों की लगाम कसें। ये कविता ने कहा कि हर साल निजी स्कूल और कॉलेजेस फीसों में गैर कानूनी इजाफा करते हैं जिसकी वजह से मुतवस्सित तबके के ख़ानदान शदीद परेशानी का सामना करते हैं। उन्होंने हुकूमत को मुतनबा किया कि अगर फौरी तौर पर कोई ठोस पॉलिसी वज़ा नहीं की गई तो वालिदैन की जेबों पर डाका डालने का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। उन्होंने हुकूमत से तालीमी इदारों की मनमानी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का मुतालबा किया है। మీ అందరి ముందు డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, మీ అందరి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఏదైతే చెప్పారో మేము కొత్తది ఏం అడుగుతలేం, మీరు ఏదైతే చెప్పినరో ఫీ రెగ్యులేట్ చేస్తామని చెప్పినరో తక్షణం మీరు ఆ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు ఇవ్వండి. మీరు చట్టం పెట్టడము అసెంబ్లీ చేయడము అవన్నీ తర్వాత, ఎందుకంటే నొప్పి ఉన్నప్పుడే మందు కావాలి. ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి మే నెలలో బాధ ఉన్నది, నొప్పి ఉన్నది, తీవ్రత ఉన్నది. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా నిజంగానే మీరు ప్రజాప్రభుత్వం అయితే, నిజంగానే మీరు ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటే, నిజంగానే మీరు ఈ ప్రజల్లో తలెత్తుకొని తిరగాలనుకుంటే మాత్రం ఈ మే నెలలోనే తక్షణమే ఫీ రెగ్యులేట్ చేస్తూ జీవో దేవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. పోయినసారి ఫీజు కన్నా ₹1 ఫీజు కూడా పెంచొద్దు ఏ పాఠశాలలు అని చెప్పి తక్షణమే రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం జీవో దేవాలని నేను తెలంగాణ రక్షణ సేన తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से कमसिन बच्चों के सफ़र हज पर पाबंदी आयद किए जाने के दौरान हैदराबाद का एक 14 साल लड़का सफ़र हज पर रवाना हुआ। कमसिन आजिम ने अपने तमाम हम उम्रों से हज की सादत हासिल करने की ख्वाहिश की है। हज 2026 के हवाले से सऊदी हुकूमत की जानिब से कई तब्दीलियाँ की गई हैं और नई पॉलिसी के तहत कम उम्र बच्चों के सफ़र हज पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान हैदराबाद से एक 14 साल लड़का सफ़र हज पर रवाना हुआ। माजी में बड़ी तादाद में शीरख्वार बच्चे और 10 साल से कम उम्र के बच्चे अपने वालिदैन के हमरा अर्ज़ मुक़द्दस जाया करते थे, लेकिन अब उस पर पाबंदी लगाई गई है। तेलंगाना हज कमेटी के मुताबिक पाबंदियों का मकसद हुजूम को कंट्रोल करना और छोटे बच्चों को शदीद गर्मी और मशक्क़त से महफूज रखना है। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक 14 साल लड़का अपने वालिदैन के साथ हज 2026 की सादत हासिल करने के लिए रवाना हुआ। जहां एक तरफ छोटे बच्चों के सफ़र हज पर पाबंदी है, वहीं इस 14 साल आजिम का जोश व खरोश काबिल दीद है। लड़के के मुताबिक वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ हज पर जा रहा है। उसने अपनी उम्र के तमाम बच्चों और तालिब इल्मों से ख्वाहिश की है कि वो बुढ़ापे के बजाय जवानी में ही सफ़र हज पर रवाना होने की कोशिश करें और हज की नीयत करें, क्योंकि कम उम्र में ज़्यादा बेहतर तरीके से मनासिक के हज अदा किए जा सकते हैं। तेलंगाना हज कमेटी के हुकाम ने वाज़ेह किया है कि सऊदी हुकूमत के क़वानीन की पासदारी लाजमी है, ताहम नौजवानों की बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन भी खुश आइंद है। कमेटी ने इस साल आज़मीन के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप्स और तरबियती नशिस्तों का भी एहतमाम किया है, ताकि हर हाजी ख्वाह वो नौजवान हो या बुजुर्ग मनासिक के हज को अच्छे तरीके से अदा कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद आफिद अली है। मैं 14 साल का हूँ और मैं पहली बार मेरे वालिद और वालिदा के साथ हज के लिए जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे लिए दुआ करें कि हमारा हज कबूल हो। और मैं चाहता हूँ कि हर मोमिन सबको हज की सारे आलम में। शहर हैदराबाद में गुटाला बेगमपेट की मस्जिद आलमगीर और ईदगाह की अराजी पर कब्जे की कोशिश। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाहिद की क़यादत में इंतज़ामी कमेटी के एक वफद ने वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्ला से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के इलाके गुटाला बेगमपेट में वाक़ मस्जिद आलमगीर और ईदगाह की कीमती अराजी पर मुबैना तौर पर लैंड ग्रैबर्स कब्जा कर रहे हैं। लैंड माफिया के खिलाफ
मुकामी कमेटी ने अब बराह रास्त वक्फ बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाया है। आपको बता दें कि गुटाला बेगमपेट में वाक़ मस्जिद आलमगीर और ईदगाह की इंतज़ामी कमेटी के एक वफ़द ने जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाहिद की क़यादत में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद असदुल्ला और चेयरमैन से मुलाकात की। कमेटी का इल्ज़ाम है कि पल्लवी बिल्डर्स और मुकामी वक्फ माफिया उस तराजी पर नजरें जमाए बैठे हैं और अपने ज़ाती मफादात के लिए उस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये भी इंकशाफ किया गया है कि खुद वक्फ बोर्ड के कुछ अफराद यानी मुलाजिमीन उन काबिज़ीन की पुश्त पनाही कर रहे हैं। मोहम्मद जाहिद जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक CEO को तहरीरी शिकायत दी गई और उन मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया जो कि लैंड ग्रैबर्स की पुश्त पनाही कर रहे हैं। कमेटी ने अपनी शिकायत में वाज़ेह किया कि वक्फ माफिया मस्जिद की ज़मीन को हड़पने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाहिद और दीगर अराकीन ने वक्फ बोर्ड के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस मामले में फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए वफराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। CEO मोहम्मद असदुल्ला ने कमेटी को यकीन दिलाया है कि वो खुद इस मामले की मुकम्मल तहकीक़ात करवाएंगे और किसी भी कसूरवार मुलाजिम को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर बराए अमकना व शहरी उमूर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हुए हैदराबाद के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने के लिए कई अहम मुतालबात पेश किए। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के लिए मरकज़ी हुकूमत से फ़ौरन मंजूरी हासिल करने और हैदराबाद के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने के कई अहम मुतालबात के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर बराए अमकना व शहरी उमूर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर को हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले की तफसीली रिपोर्ट यानी DPR पेश की और उन्हें बताया कि इस मंसूबे पर तकरीबन 38,595 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मुजवज़ा मंसूबे में शहर के दूर दराज के इलाकों और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को तरजीह दी गई है। वज़ीर आला ने मरकज़ी हुकूमत से ये दरख्वास्त की कि वो इस मंसूबे को जल्द अज जल्द हरी झंडी दिखाए ताकि तामीराती कामों का आगाज़ हो सके। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर ने वज़ीर आला की दरख्वास्तों पर मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्हें यकीन दिलाया है कि मरकज़ी हुकूमत हैदराबाद की तरक्की और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी और मेट्रो फेज़ 2 की रिपोर्ट का बग़ौर जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब उनका काफ़िला गुजरने की वजह से आवाम को रोक दिए जाने और आवाम की दुश्वारियों का सख्त नोट लिया। DGP CV आनंद को हिदायत जारी की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उनकी आमदोरफ्त की वजह से आवाम को तकलीफ न पहुँचे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस हुकाम को सख्त हिदायत जारी की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि VIP मूवमेंट के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक को न रोका जाए। शमशाबाद एयरपोर्ट के रास्ते पर हाल ही में वज़ीर आला के काफ़िले की वजह से ट्रैफिक जैम लगा था। इसका नोट लेते हुए रेवंत रेड्डी ने DGP CV आनंद को हिदायत जारी की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि VIP कल्चर की वजह से आम शहरियों का वक्त ज़ाया ना हो क्योंकि ये नाकाबिल कबूल है। उन्होंने ये कहा है कि काफ़िलों की नक़्ल हरकत के दौरान गाड़ियों को बिलावजह ना रोका जाए। मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रैफिक को भी न रोकने को कहा गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर किसी अफसर की लापरवाही की वजह से आवाम को घंटों इंतज़ार करना पड़ा तो उस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला की सरजनिश के बाद DGP CV आनंद ने फौरी तौर पर तमाम अजला के पुलिस सरबराहों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासत में ट्रैफिक के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए एक अलहदा ट्रैफिक ब्यूरो कायम करने का फैसला किया गया है जिसकी सरबराही एडिशनल DGP करेंगे। इतना ही नहीं, शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरीन को भी तरजीह देने का फैसला किया गया है ताकि किसी को एयरपोर्ट पहुंचने में ताख़ीर न हो। आउटर रिंग रोड पर पेश आने वाले सड़क हादसात को मद्देनज़र रखकर आउटर रिंग रोड पर गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ भी सख्त मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला के इस इक़दाम को सोशल मीडिया पर अवामी हलकों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। अब देखना यह है कि ज़मीनी सतह पर पुलिस वज़ीर आला के अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद करती है।
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गवर्नर कोटे के तहत हाल ही में की गई MLC नामजदगियों को कानूनी चैलेंज का सामना। हैदराबाद के एक रिहायशी ने साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर M कोदंडाराम की बतौर MLC तकर्रुरी के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ज़राए ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से गवर्नर कोटे के तहत हाल ही में की गई MLC नामजदगियों को कानूनी चैलेंज का सामना है। हैदराबाद के रहने वाले सैयद हैदर ने इस सिलसिले में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और रियासती हुकूमत के इस फैसले पर एतराज़ किया है। दरख्वास्त गुजार ने गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को जारी किए गए जियो नंबर 71 को चैलेंज किया है, जिसके ज़रिए इन दोनों शख्सियात यानी मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम को MLC नामजद किया गया था। पिटीशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि प्रोफेसर कोदंडाराम और मोहम्मद अजहरुद्दीन वो मखसूस आइनी अहलियत या मियार नहीं रखते जो गवर्नर कोटे के तहत नामजदगी के लिए ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि हुकूमत के इस फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी तौर पर उसे कल अदम किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से ये भी अपील की कि वो जियो 71 पर अमल दरामद को फौरी तौर पर रोकने के लिए स्टे ऑर्डर जारी करे। आपको बता दें कि गवर्नर कोटा के तहत इन नामजदगियों पर पहले ही सियासी हलकों में बहस जारी थी और अब ये मामला अदालत तक जा पहुंचा है। मंचियाल जिले के लक्सटी पेट में BRS रहनुमा जीवन रेड्डी ने किसानों के हमरा कौमी शाहराह पर एहतजाज दर्ज करवाया। गैर मौसमी बारिश से फसल बचाने की कोशिश में जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजा देने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि BRS रहनुमा जीवन रेड्डी आज किसानों के मसाइल को लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मंचियाल जिले के लक्सटी पेट में कौमी शाहराह पर 4 घंटों तक धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नक़्ल व हरकत शदीद मुतासिर हुई। एहतजाज की बुनियादी वजह ये रही कि हाल ही में होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। जीवन रेड्डी का कहना है कि कई किसान अपनी तैयार फसल को बारिश से बचाने की कोशिश के दौरान हादसाती तौर पर मौत का शिकार हो गए हैं और हुकूमत को उन मुतासरा किसानों की फौरी मदद करनी चाहिए। जीवन रेड्डी ने हुकूमत से मुतासरा किसानों को फौरी तौर पर मुआवजा फराहम करने और उनके ख़ानदानों की माली मदद करने का मुतालबा किया है। एहतजाज की वजह से कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर जीवन रेड्डी को मनाने की और उनका एहतजाज ख़त्म करवाने की कोशिश की, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलता उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके हैदर शाकोट में मेन रोड पर वाक़े KFC पिज़्ज़ा हट आउटलेट में अचानक आग भड़क उठी। इमारत से उठते धुएं के बादलों ने इलाके में सनसनी फैला दी। ज़राए ने बताया कि हैदर शाकोट की मसरूफ़ तरीन सड़क पर वाक़े KFC और पिज़्ज़ा हट के मुश्तरका आउटलेट की दूसरी मंजिल पर आज अचानक आग भड़क उठी। दूसरी मंजिल से आग के शोले उठते देख मुकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। वहां मौजूद अमले और ग्राहकों में भी अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त दूसरी मंजिल पर ही गैस सिलेंडर्स की एक बड़ी तादाद रखी गई थी, जिसकी वजह से धमाके का खतरा भी पैदा हो गया था। आग लगने की इतला फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट को दी गई और नारसिंगी पुलिस को भी मतला किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और उसे मजीद फैलने से रोक दिया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम रेस्टोरेंट के फर्नीचर और स्टोरेज में मौजूद सामान को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात कहती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने नारायण खेड़ बल्दी हुदूद में बाला सदन की नौ तामीर शुदा इमारत का शानदार इफ्तिताह किया। संगारेड्डी ज़िले के महकमा ख़वातीन, अतफ़ाल, माज़ूरीन और मुअम्मर अफराद की फलाह बहबूद के लिए बाला सदन तामीर किया गया है। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने नारायण खेड़ बल्दी हुदूद में तामीर की गई बाला सदन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि ये इमारत तेलंगाना हुकूमत के उस जामे तरक्याती मंसूबे का हिस्सा है जिसका मकसद अवामी खिदमात को निचली सतह तक पहुँचाना है। दामोदर राज नरसिम्हा का कहना था कि ये मंसूबा 99 रोज़ा एक्शन प्लान के तहत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल
किया गया है। बाला सदन के जरिए यतीम और बेसहारा बच्चों को छत, तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने हुकूमत की तरजीहात पर रोशनी डाली और कहा कि हुकूमत का मकसद मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात बिलख़ुसूस बच्चों और ख़वातीन की ज़िंदगियों में खुशहाली लाना है और ये बाला सदन महज एक इमारत नहीं है बल्कि उन बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है जिन्हें सहारे की ज़रूरत है। उन्होंने संगारेड्डी ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा महकमों की भी सताइश की जिन्होंने मुक़र्ररा वक्त के अंदर इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर के अलावा महकमा बहबूद ख़वातीन व अतफाल के आला अफसरान भी मौजूद थे। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केटीआर को गांधी खानदान के खिलाफ बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की जानिब से राहुल गांधी और नेहरू खानदान पर तनकीद करने पर टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने केटीआर पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केटीआर को मुखातिब करते हुए कहा कि केटीआर को गांधी खानदान के खिलाफ बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। केटीआर को अपनी हैसियत देखनी चाहिए। महेश कुमार गौड़ ने केटीआर के अमेरिका में गुजारे हुए वक्त का जिक्र करते हुए कहा कि वो शख्स जो कभी अमेरिका में रहा करता था आज उन लोगों पर तनकीद कर रहा है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की बुनियाद रखी थी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि केटीआर ने तेलंगाना की असल जद्दोजहद में हिस्सा लेने के बजाय अपने वालिद की सियासी साख का फ़ायदा उठाकर इक़्तिदार हासिल किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।